Our ancestors were driven out of their land by force. It is probably present-day Iran or Iraq, Aira or Koida Disham. Uprooted from their ancestral land, they were flung into utter darkness. They began groping for a ray of light and were wandering in search of food and shelter. From the depth of despair, they cried out to Marang Buru, "Protect us, O God, and show us the way out of this darkness. We will worship you and offer you the first fruit of everything before we taste of it." Marang Buru heard their prayers, and a ray of hope appeared for them. Jharkhand, the land of the forest, where the bounties of nature weave together with the life processes of the Adivasis and create this unique centuries-old civilization. Jharkhand, home of the Santals, Mundas, Ho, Oraon and other Adivasis. They believe that in the past they were driven away from the land of their ancestors. Jharkhand, on the eastern side of the central Indian peninsula, a land rich in minerals. तो नोंकान कथा को हापड़ाम को दो अडिगान कथा मेन गानोआ सोरहाय रे बहार रे दासाय रे जहाँ जहाँ घटना हुईलेन ओना को दो को इतिहास में कोलकाते बांग ताहे कना ओना दो एनेज सेरेन को. We Adivasis do not have a written history. Our traditional songs, dances and festivals like Sohrai, Baha, Dasain actually tell us of our past. One of our songs tells us that we were born in Hihiri Pipiri. We grew up in Haritare. Our first ritual ablution took place in Sasang Beda and we prospered in Jarpi Disham. Our enemies could not stand this prosperity. Consumed with greed, they attacked us and drove us out from Chai Champa to Badoli to Koida. They destroyed our ancestral country time after time till we came to settle in our Singh Disham. तो सार तगे जाहिर तो बन न्यामका तो उन जो हन मारांग गुरु ओकारे इनखान बोंगा ले आपे मा जो कोन अतु पे तिगुन किया बेरेट किया पे इनखान ओने जे धर्म न्युतुम ते सार जहां किन तेरा. We followed the arrow our Marang Buru had shot and settled down where it had landed. The same arrow also indicated our Jahar Than, our sacred grove, a thick cluster of sal trees, a place of worship for Marang Buru. इलाका आदिवासी बहुल क्षेत्र रहा है। जहाँ भी आदिवासी बसे हैं वहाँ की जमीन के नीचे
जमीन पर भी बहुत सारे खनिज संपदाएं भरे हैं और ये यहाँ के लोगों का दुर्भाग्य कहें कि यही खनिज संपदा जो आज उसके पैरों के नीचे हैं उनके विनाश का प्रमुख कारण रहे हैं। India's only productive uranium mines, Jadugoda, Bhatin and Narwa Pahad, lie in the East Singhbhum district, also known by its traditional name, Dalbumgarh. Near Jadugoda are the famous copper mines of Musabani, Surda and Rakha, where uranium is also mined. Dalbumgarh is also historically famous, for it is here that for the first time the British clashed with the Adivasis and were humbled. जाड़ागोड़ा बोलते थे पहले का गांव का नाम जाड़ागोड़ा बोलते थे। बहुत गहरा जंगल थे तो 4 बजने से इधर बाघ भालू आते घूमते थे, इतना गहरा जंगल थे। When it was discovered in the 18th century, uranium wasn't of much use. But after the success of the atom bomb in the Second World War, it became a symbol of political power. Though uranium has been acclaimed as a source of cheap electricity for the past 50 years, its real value lies in its use in nuclear explosions. Sealed within the Earth's crust are a number of elements continuously disintegrating and emitting harmful rays. These elements are called radioactive elements. Uranium is just one of them. When uranium is brought to the surface, the protective shield is lost, and it starts contaminating the atmosphere with its harmful radioactive rays. इस पहाड़ के उस साइड में अंग्रेज लोग बने एक माइनिंग का शुरुआत वो लोग किया था, जिसका अवशेष अभी भी है। कुछ टूटा हुआ घर है और चिमनी वगैरह है, जो देखने में पता चलेगा कि ये सही में अंग्रेज लोग पहले यहाँ माइनिंग का प्रक्रिया ये लोग इस क्षेत्र में लोग शुरुआत किया था। पुराना खदान है जो अभी बंद पड़ा है। The ore contains a very small percentage of uranium within it, so a large amount of ore has to be processed at the mill at Jadugoda to obtain a reasonable amount of uranium. For this, the ore is converted into liquid uranium concentrate. Liquid uranium concentrate is also brought to the Jadugoda mill from the copper mines of Musabani, Surda and Rakha. This liquid concentrate is further processed to form yellow cake. कितना दूर है यहाँ से आपका माइंस? गांव से सटा ही हुआ। तो आप लोगों को मैनेजमेंट की तरफ से कुछ बताया गया है कि क्या खतरा होगा? नहीं, उधर से हम लोग को कुछ बताया नहीं गया। ये जो मटेरियल निकलता है, पत्थर तो तेजधार होता है, इसमें कभी कभी अगर इस पत्थर में कोई कट जाता है पैर हुए तो वो जल्दी अच्छा नहीं होता है। इसी से हम लोग को पता चलता है कि इसमें जरूर कुछ जहरीला टाइप का है। There are 3 kinds of radiations: alpha, beta and gamma. While alpha cannot penetrate the skin, beta can to some extent. Gamma is a powerful ray and can penetrate not only through the human body, but even through a 30 centimeter thick concrete wall. Though invisible to the naked eye, radiation causes irreparable damage to all living organisms. The penetration of alpha radiation is low, but when it enters the human body, it continuously keeps radiating. कोई अगर
जिसका प्रेगनेंसी में उधर से गुजरता है तो वो लोग को इसका इफेक्ट हो जाता था, तो एवर्शन हो जाता था। तो लोग क्या समझते थे, भाई वहाँ भूत है, गया था इसीलिए ये चीज हो गया, नहीं तो नहीं होता था। लेकिन अभी जो हम फिलहाल हम लोग देखते हैं भूत तो नहीं था, उसका एक तो जो रेडिएशन पावर है उसी का एक तो मतलब अंश है। Every kilogram of uranium yellow cake leaves behind thousands of tons of waste, both liquid as well as solid. This is known as tailing. This entire process consumes large amounts of water, almost 3 times the quantity of the ore. Even after the extraction of uranium, over a dozen highly radioactive elements like thorium, radium and radon remain in the waste. All these highly radioactive wastes are flushed with the tailing to the dam site called the tailing dam, where they continue to radiate for thousands and thousands of years. कुछ आदमी बोलता है ये सब तो ऐसा बीमारी तो हम लोग देखे भी नहीं थे, बकरी भेड़ी ये सब का, किसी का दांत गिर गया, किसी का मतलब ये सब छिला गया, ये जो है ये पोजीशन सब छिला गया, मतलब कट करके अपने आप गिर गया। The radioactive waste can spread from the tailing dam in many ways. Radon and other radioactive gases can spread over huge areas. Winds can blow away the sand-like radioactive waste from uncovered tailing dams. These radioactive particles enter our body through different routes. This radioactive water enters the underground water, rivulets, ponds and streams and travels far and wide. Through the food chain, radioactive nuclides also enter our bodies, where they keep radiating within the delicate tissues of the body. जमीन जब लिया गया तो यहाँ का मांझी परगना को पूछा गया था कि हम आपका जमीन ले रहे हैं और यहाँ यूरेनियम माइनिंग हम लोग करेंगे, ऐसे पूछा था। ये सब जो मांझी परगना किसी को लोग पूछा नहीं, हम लोग माइंस खुला गवर्नमेंट का जगह हमको लेना है ले लेंगे, आप लोग कितना भी कुछ कीजिए, क्या करें। आदिवासी हम लोग को जानकारी, आदिवासी के लिए कोई सहायता कोई देने वाला नहीं है। सेदाया पणामा कोरे खोलोगे धरम भरम देश मुजेता हिकेरे या बिचर बनो हिकेरे बिचर बनो While we all are exposed to some amount of natural radiation all the time, the concentration of radiation at the tailing dams increases the health risks of the people around the area. जिसको भी रेडिएशन मिल जाता है, ये नहीं कि वो सभी मर जाते हैं कैंसर से। 1000 लोगों को आपने रेडिएशन दिया और 1000 लोगों को आपने कोई रेडिएशन नहीं मिला, तो इनमें अगर 10 लोग कैंसर से मरते हैं, इसमें शायद 20 या 25 लोग मरेंगे, सभी नहीं। सबसे पहले ये बात, ये बच्चों का भी यही हिसाब है। आपके जो बैकग्राउंड में जहाँ पर कोई रेडिएशन नहीं, कोई भी ये नहीं, वहाँ पर भी ऐसे लोग पैदा होते हैं, विकलांग या अंधा है जन्म से, ये बहरा है या, लेकिन यहाँ पर इससे ज्यादा होगा। क्या चीज है ये वाला? ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? हम लोग
हम लोग का भाषा से हाँ तिरिल। ठीक बोले। ये जो अभी ये बीजा हुआ है ना, ठीक से नहीं हुआ है, ऐसे हो रहा है जोड़ा जोड़ा। पहले ऐसा होता था। हाँ अभी ऐसे हो रहा है। काहे ऐसा हो रहा है? ये तो हम नहीं बोल सकता है। For the construction of the first tailing dam at Jadugoda, the rice fields of the tribals were taken away by the Uranium Corporation of India Limited, or UCIL. When this was filled, a second dam was constructed, further displacing villages. अब रह गया कि जब हम यूरेनियम निकाल लिए उससे, हम तो यूरेनियम माइंस करके तुरंत फेंक नहीं देंगे, तो यूरेनियम जो बचेगा वो बहुत ही कम रहेगा उसमें, समझ गए ना। और वो यूरेनियम क्या होता है कि अगर डैम बना हुआ है, उसका पानी अगर निकाल करके हम ट्रीट कर दिए तो उसमें जो भी घुला हुआ यूरेनियम रहेगा, रेडियम रहेगा, जो भी रहेगा वो सब निकल जाएगा। फिर उसको हम डाल देंगे। वो तो आप पिएंगे नहीं, आपके पास आएगा नहीं, वो तो चला जाएगा नीचे जहाँ हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। इसका जो डस्ट उड़ेगा वो आपके ऊपर आ सकता है, तो उसके लिए आपको कुछ असर हो सकता है, लेकिन वो एकदम बालू है, नदी के किनारे जो बालू है उससे ज़्यादा रेडियो एक्टिव होगा उसका। लेकिन उसके लिए हम लोग प्रोटेक्शन लेंगे। वो बालू आपके ऊपर, एक तो है कि आपके घर की तरफ नहीं आएगा, डायरेक्शन उधर जाएगा, उसका दूर है वो। उस पर हम लोग घास उगाते हैं, उसको गीला रखते हैं, और उसका इस तरह से हम लोग डिस्पोजल करते हैं कि हमेशा थोड़ा पानी बना रहे, जिसे गीला रहे, आपके ऊपर ना हो। जो एनर्जी निकलती है, जो रेज निकलती हैं, वो आपके पास पहुंचेंगी नहीं, वो गैस फार्म में होकर ऊपर निकल जाएंगी। तो इस तरह से आपके ऊपर नहीं आएगा। आप देख ले डाउन स्ट्रीम में जो हमारा डैम है, उसके नीचे रोड साइड में कितने मकान हैं, कितने आदमी अफेक्टेड हैं। जो बोर्ड दिया था नो एंट्री रेडियो एक्टिव एरिया, ये क्यों दिया था और क्यों उसको तोड़ दिया गया? इसलिए कि कोई वहाँ का बालू उठावे ना, उस पानी में जाके नहाए ना, वहाँ पर कोई गाय न चरावे। नहीं, इसके बारे में तो जैसे हमारे लोगों को एकदम पता ही नहीं है कि ये यूरेनियम से कि ये कचरा से कुछ रेडिएशन होता है। इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। नंगा पैर इसमें चल जाता है, आना जाना, यहाँ पर बैल बकरी सब तो यहाँ रहता है। ले ले। "30 years ago, many gave up their lands for the construction of mines, mills and tailing dams. Today, they have no option but to risk their lives living near the dams and collecting stones from the mine tailing for a livelihood." यूरेनियम का ये धागा कहाँ से मिला? ये जो किचड़ा गिरा है ना उधर, लड़का लोग लेके आया उधर से, किचड़ा उधर गिरा था ना टेलिंग पॉन्ड में। हाँ, उसमें ये टुकड़ा उकड़ा बहुत से ऐसे किचड़ा का साथ में मिल का अंदर से इसको ले आता है, उधर गिरा देता है, लड़का लोग लेके आता है। गर्मी के सीजन में ये वहां से धूल उड़ करके पूरा गांव में फैल जाता है। हमने वहाँ सिक्योरिटी का आदमी रखा है। हमारा आदमी रहता है पंप हाउस जो था पहले। गलत है सर, सिक्योरिटी का आदमी चोरी हो जाएगा। हाँ, अभी सिक्योरिटी गार्ड वहाँ है आपका, तो सब अभी है एसडीओ के चार्ज पर है, वीडियो आई हुई है। अगर एक भी सिक्योरिटी गार्ड वहाँ है तो हम फ्री जमीन देंगे तैयार। वो कंपनी का प्रॉपर्टी लिख लीजिए चोरी हो जाएगा, कौन देखेगा? वहाँ की कोई सुविधा नहीं है कि वहाँ पर हर बच्चा छोटा बच्चा आता है। अभी भी जाइएगा तो फुटबॉल खेलता है उस ग्राउंड में, वो क्या जाने बेचारा कि अब रेडियो एक्टिव क्या है। और ये बोल रहे हैं साहब हमारे कि वहाँ पर सब सिक्योरिटी गार्ड है, कोई वैसा कुछ नहीं।
क्या हम लोग देख रहे हैं? सिक्योरिटी गार्ड है, बताएंगे आपको, यही है। एक हमारी बात सुन लीजिए, हम इन्होंने एक आदमी भेज दिया सिक्योरिटी, अब वो जाके सो गया कि कहीं और चला गया, डिस्चार्ज कीजिए उसको। देखिए आदमी का ह्यूमन है, पाएगा या जरूर सस्पेंड होगा। दिस इज योर ड्यूटी, दिस इज हार्मलेस टू द ह्यूमन बीइंग्स। ये आप ऐसा करके नहीं बच सकते। What do you say, man, to say? That I am sending a man there, he is sleeping. It is not my duty to check it. He is also a human being. This is your problem. Workers in the mills and mines are continuously exposed to the risk of radiation. What is alarming is that sometimes jobs in high radiation areas are done by casual and construction workers who are totally ignorant of the hazards of radiation. While the law stipulates periodic medical checkups for workers of the company, for the benefit of the casual workers, there is no such provision. माइंस के अंदर जाने के लिए वो ये देता है बूट, माइनिंग बूट। उसके बाद हम लोग को कपड़ा देता है काहे के लिए? वो धूला नहीं नाक में नहीं लगने के लिए, लेकिन वो एक बार 2 दिन से फिर वो एकदम ये खत्म हो जाता है। तो कोई मास्क वगैरह नहीं देते हैं, रेस्पिरेटर जिसको बोलते हैं? नहीं, हम लोग को रेस्पिरेटर नहीं देता है, सिविल माइंस को खाली देता है। माइनिंग वाला को, वो भी जो लोको चलाता है, LSD चलाता है, वो लोगों को देता है। उन पेशाब वसाब जांच करते हैं वो लोग? करते हैं तो 5 साल 8 साल 10 साल बाद होता है। जैसे हमारा फास्ट हुआ था 15 साल 12 साल में से फास्ट हुआ मेडिकल और हुआ नहीं। उसका रिजल्ट बताया आपको? वो कुछ बताया नहीं। अच्छा, आपको रेडिएशन मालूम है? रेडिएशन क्या होता है जानते हैं? वो उतना तो मालूम नहीं है, लेकिन शरीर का बहुत हानिकारक है। आप कंपनी को दिखलाए? हाँ, देखा रहा, कागज पत्र सब कुछ है। क्या बोलते हैं वो लोग? वो बीमारी निकल नहीं सकता, नहीं अभी तक इतना दिन हो गया। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है आपको कुछ पता है? तो आपके साथ जो लोग काम करते रिटायर हुए, हाँ, सब खत्म हो गए, कोई नहीं है। एक आदमी बचा है, 2 आदमी। इनके पश्चात ये अंसारी, वो लोग हमारा साथ ही में काम करते थे। ऑपरेटर उनकी पोस्ट था, मेरा पोस्ट था हेल्पर थी। उन लोगों को कोई बीमारी उमारी का है? सबको पकड़ा हुआ है। क्या क्या पकड़ा है? इनके प्रसाद को टीबी पकड़ा है, अंसारी को टीबी पकड़ा है। दवा चल रहा है, काम में लगे रहते हैं। तो आप लोगों को कुछ भी नहीं बताया कि वहाँ अंदर जाना, ये सब बचाना है, आते वक्त नहाना है? वो तो कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया? चेहरा में पहनने के लिए कुछ दिया था? चेहरा में तो कुछ नहीं दिया था। कुछ नहीं दिया? ग्लव्स दिया था हाथ में पहनने के लिए? नहीं। अच्छा, आपको एक बैच होता है यहाँ एक टांगने के लिए, कुछ मीटर दिया था? नहीं दिया, सिर्फ लाइट रहेगा सिर में बस। Thao bố tô lô thao bang nhà mô ta pa he cho ni re ba lô nuhi mi che ta mohi mare le tana kana
Sangimitra Gadekar, a doctor by profession. She did a medical survey of the villagers living around the Rawat Bhata nuclear power plant in Rajasthan. When she visited Jadugoda and nearby villages, she made some startling observations. जादूगोड़ा में मैं जो गई थी तो हम लोग कुछ गांव में वहाँ पर घूमे। हर गांव में हमने 15-20 लोगों तो ज्यादा ही लोगों को देखा, 150 से। तो सबसे पहला जो हम लोगों ने देखा तो वहाँ पर हमें काफी ऐसे बच्चे दिखे और ऐसे नवयुवक दिखे कि जो 20-25 साल से कम उम्र के थे और उनमें कुछ जन्मजात विकलांगताएं देखी। जैसे कि आप देखेंगे कि पॉलीडेक्टिली 5 की जगह पे 6 उंगलियां हैं, 7 उंगलियां हैं, या पैरों में हैं या हाथों में हैं। मेडिकल टर्म में इनको हम एक स्केलेटल डिफॉर्मिटीज कहते हैं। लेकिन अगर जन्म से नहीं है, बाद में हुआ है और बढ़ रहा है तो अरे बोलो छोटे अच्छे तपर खुजली अच्छे तपर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनमें चमड़ी की त्वचा के रोग थे, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में हाइपरकेराटोसिस कहते हैं। माने जो केराटिन होता है चमड़ी के अंदर वो बढ़ जाता है, और दूसरे आम भाषा में उसको टोड स्किन भी कहते हैं। और वो भी जैसे बच्चों के चूतड़ों पे या पैरों के पीछे जहाँ जॉइंट्स हैं उस जगह पे। आपकी माँ को भी कुछ ऐसा था? क्या हुआ था उनको? ऐसे ही था? पूरे मुंह पे था कि पूरे बदन में था? पूरे मुंह में भी था। गुजर गई, वो नहीं है? अभी कहाँ है वो? मर गए। काले काले धब्बे शरीर के अंदर हो जाते हैं, और वो मुझे 2 केस देखने को मिले, शायद और भी होंगे। हम लोगों ने तो सब घर में तो गई नहीं थी। यानी कैंसर जब होता है उसके पहले, चमड़ी का कैंसर होने के पहले इस तरीके का होता है, वो भी मुझे देखने को वहां पर मिला। गांठें कुछ देखने को मिली, यानी जिसको आबूर्द कहते हैं या ट्यूमर्स कहते हैं, बच्चों में भी देखने को मिली, बड़ों में भी कुछ देखने को मिला। वो बच्चे दिखे कि जिनके एक तरफ उनका अंग जो है ज्यादा बढ़ रहा है और एक तरफ का छोटा है और बढ़ा ही नहीं है। तो ये एक बहुत ही रेयर बीमारी है। तो ये केस तो ऐसे हैं जो कि 1 लाख की बस्ती में एक होता है। तो इसके अगर 2 केस मिल जाएंगे तो वो कहा जाएगा कि बहुत ज्यादा होगा। दूसरे जो केसेस दिखे बच्चों में, उनका सिर बहुत छोटा था। 2 बच्चे ऐसे भी दिखे जिनका सिर बड़ा था, जिसको जो है मेगाकेफली कहते हैं, यानी बड़ा सिर वाला, और जो छोटे वाले थे उनको माइक्रोकेफली कहते हैं। देखो ये और इसका चेहरा, फेस, सब फेसेस दूसरी जो चीजें मुझे जादूगोड़ा में देखने को मिली, वो डाउन सिंड्रोम भी मिला। वो भी एक अनुवांशिक रोग है, कष्ट देने लायक वो बीमारी है। माँ बाप के लिए भी है और जो बच्चा जीता है उसके लिए भी है, कि उसको कम बुद्धि से काम चलाना पड़ता है। वो आपस में अपना खुद का जो जीवन के काम है, जैसे कि खाना खा लेना या पैखाना साफ करना, या आपस जो जिंदगी जीने के खुद के नॉर्मल काम है, वो भी वो नहीं कर पाएगा। हिरोशिमा नागासाकी के बम गिरने के बाद जो बच्चे, उस समय जो गर्भ में बच्चे थे और वो जब बाद में पैदा हुए हैं और उनको जो उन पे अध्ययन हुआ है, तो उनमें भी वो देखा गया है कि इस तरीके के माइक्रोकेफली और ये केसेस हुए हैं। और उसको तो एकदम लोगों ने सभी मानते हैं कि ये विकिरण के कारण भी ऐसा होता है। Indeed, there are some troubling questions. Why is it that abnormalities and birth defects are found only in persons below 30 years of age? Why is there an unusual increase in cancer and lung diseases in this area? The authorities say that alcoholism is the root cause. And regarding the skin abnormalities,
They say it is due to the unhygienic living conditions of the tribal people. मैं भी 1964 से यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो स्वस्थ हूँ। हाँ, तो हमारा कुछ नहीं है, हमारे परिवार भी सब ठीक है, हमारे 4 बच्चे भी हैं, वो भी सब बहुत स्वस्थ हैं। कोई हमारे बच्चे एक इंजीनियर है। यहाँ पर सुनने को आया कि कैंसर की समस्या ज्यादा बढ़ी है। देखिए भाई साहब, ये बीमारी तो ऑल ऑफ इंडिया में है, सब जगह है। ये कहा जाए कि जादूगोड़ा में ही है, ये अब तो पब्लिक कहने का तो बहुत कुछ कहता है। यहाँ तो बूढ़ा आदमी लगन तो नहीं है, जान से मर जाता आदमी लगन, आदमी हो या औरत हो। जैसे अब ज्यादा बूढ़ा के है जिंदा, ऐसा नहीं रहता है। एक ठो लड़का का तो हर एक महीना रक्त चढ़ रहा है। हर महीना में खून बदलते हैं। हाँ। डॉक्टर क्या बोलते हैं? डॉक्टर बोलता है जो ये थैलेसीमिया बीमार है, इसको प्रत्येक महीना चढ़ाना पड़ेगा। वो खून बदलते बदलते आप सकेंगे उसको जिंदा रखने के लिए? नहीं, ये तो ऊपर मालिक, हम तो कुछ नहीं। भगवान के ऊपर में हम लोग को छोड़ दिया, क्या करेगा। तो धरपीस कैसी वाला बीमारी, कितना लड़का लोग गुजर गया 2-3 ठे। इसलिए तो हम लोग को सोच रहा, हम बोल रहा मेरा आदमी को बार जो हम लोग को यहाँ नहीं रहेगा, रहने से ज्यादा बीमारी फैल रहा। बल्कि स्पॉन्टेनियस गर्भपात यानी जो अपने आप से होने वाले गर्भपात हैं, उनकी मात्राएं ज्यादा दिखेंगी। दूसरी चीज जो दिखेगी, जो बच्चा जन्मा है और 24 घंटे के अंदर मर गया, वैसी चीजें शायद ज्यादा देखने को मिलेंगी। तीसरी चीज जो देखने को मिलेगी वो ये है कि स्टेराइल कपल्स ज्यादा दिखेंगे। 3 ठो तो खराब हो गए, 1 ठो चौथा, 2 ठो तो पेट में ही खराब हो गया और 1 ठो 8 महीना हो करके। तो 8 महीना जो हुआ था वो जन्म हुआ था उसका? हाँ, जन्म हुआ। उसका कहाँ जन्म हुआ था? ये राखा में स्टेशन के साथ में, पता नहीं क्या हुआ, 8 महीना में ही बच्चा डेथ। उनके पूरे शरीर नाक नक्शा किसी ठीक नहीं है। मेरा तो पहले एक लड़का हुआ था, वो भी होके गुजर गया। फिर दूसरा बार बीच में हुआ था, वो भी होके गुजर गया। फिर अभी अगले साल एक लड़की हुआ था, वो भी होके गुजर गई। 3 बच्चा? हाँ। कितना दिन पर गुजरा वो बच्चा? एक ठो था 24 घंटा, एक ठो था 2.5 रोज और एक ठो 7 रोज। यहाँ का लड़की बाहर में शादी देता तो और लोग को भी छोड़ दिया है, बच्चा नहीं होने के कारण से। तो मेरे बच्चा नहीं भी होना अभी ज्यादा घटना घट रहा है? हाँ, ऐसे 1-2 का है यही बस्ती में। मासे अली में हुदी सना में, मासे अली में दिसना में, kadang kadang juture amado tahene gece sana. To probe further into the health problems of the people of Jadugoda, the Environment Committee of the Bihar State Legislative Council instituted an inquiry. A report was placed in the State Assembly in 1998. सत्य सिद्ध हो चुका है कि वहाँ विकलांगता है, जन्मजात विकलांगता है। यूरेनियम विकिरण के कारण लोगों के जलने का निशान है। स्त्रियों में बांझपन की शिकायत है। ये शिकायतें समिति के समक्ष आई। This is the tailing pond. See, I said the tailing pond is used as this is tailing pond 1, tailing pond 2. These are the pipes which were taking to tailing pond 2. Shaft from where the workers go down underground, and these are the pipes from which the slurry, radioactive slurry, is brought to the tailing Narva Pahar mine. This is the transportation on the haulage route. 80% of the world's uranium comes from indigenous lands, and 100% of India's uranium, productive uranium, comes from
Adivasi and tribal lands like Jhaduguda, Jharkhand and Meghalaya. मुसाबनी के पास में जो तांबा का जो खदान है उसमें से भी यूरेनियम निकलता है और उसके टेलिंग्स को रखने के लिए कोई टेलिंग पॉन्ड नहीं है और उसके टेलिंग्स को सुवर्ण रेखा में डायरेक्ट डाला जाता है। इसके फोटोग्राफ्स बाहर में लगे हैं तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? It's a full-fledged copper mine, commercial plant. But what was happening that it is not coming under the purview of radiation protection because it's a natural radioactivity in that ore. But all the same, what we have done that we have found that the water they were discharging, it has a few parts per million of uranium. So we said that your effluents, you can give it to us in Uranium Corporation of India. We'll extract uranium out of that and then discharge it to the tailings pond. As a matter of fact, after ICRP 60 came, one scientist from Israel, he published a very interesting paper. He said that now the limits which are permitted for public exposures, they are more than the dose you will get by sleeping with your spouse. Because spouse has about 3000 becquerels of potassium in his or her body, and sleeping close to her you get radiation dose, and if you take on annual basis, it works out to more than what is permitted under the new regulations. The International Nuclear Safety Convention, which India has signed in '94, requires a effective separation between the regulatory body and the promotional agency, and this India is in clear violation of this. This is the high radioactive material coming from Hyderabad or other centers in drums at Raka railway station. On this line it's a heavy traffic route, Howrah Bombay route. A lot of this yellow cake there are layers of it on the route, on the railway platform, and it all flies into all the Gitanjali expresses and all. ऊपर से जम करते हैं पानी नहीं तो या My only submission is please do not give credit or discredit for everything to nuclear radiation. None of those diseases are related to nuclear radiation dose. In any case, yellow cake does not give any harm unless it goes inside your body, because yellow cake is uranium which is pure alpha emitter. You can handle uranium by bare hands and nothing will happen to you. Safety regulation is, in the first place, that drum should not have been broken. It should have been handled, welded properly, handled properly so that it doesn't break. Second, an accumulation of such trunks should not be lying in a public area so that children can sit on it and people can be walking past it. So all these are, every step is a violation of the practice and the norm which is set. There is no excuse of somebody walking over a dried up training pond
And then to say that, well, even if you work out the radiation from that, it doesn't amount to much, so I think even if he walks, it is all right. That is a violation. Internationally, it is a mutually agreed thing that tailing ponds should be cordoned off, and there's no question of even animals walking over the tailing pond. It is a negligence which amounts to, which should be at least considered as a criminal activity, because that's the only way that it can be controlled. I think in any other country, the chairman and managing director of that organization will be held responsible for that fault. It is not the security guard standing there is not going to be hung first. The chairman will have to answer in front of some committee or some court why people were found walking on the tailing pond. क्या क्या होने वाला है? ऐसा है, देखिए हम फर्स्ट पे ध्यान दिखा देंगे जो हमारा एक्चुअली क्या करते हैं हम लोग। आई कैन टेल यू 30% ऑफ आवर मनी गेट्स wasted only. It's not wasted. This gets utilized only for the environmental problem. Once we have recovered this thing, 30% of the total cost comes only for this. सुनिए, अभी जो डैम आप बना रहे हैं, ये कितना दिन में कंप्लीट होगा? अभी आप बोले कि 1.5 साल। अभी जो ये टेलिंग आप गिराए हैं, ये अभी कुछ दिन के बाद बहुत जोर से वर्षा आएगी और इसको बहा के ले जाएगा। उसको क्या? नहीं, हम लोग यही केयर ले रहे हैं। उसको तो रोक नहीं सकते? नहीं, क्यों? कैसे रोके? We are fighting with the time. वो सब करने के पहले आप डंपिंग क्यों चालू? किसका? डंपिंग जबकि लोग यहाँ टेलिंग्स आर पार्ट ऑफ द डैम मेकिंग। उस साइड मैं आपको यही तो ड्राइव टेलिंग से ही आप डैम बनाएंगे? हर एक जगह, everywhere. Otherwise the cost will go quite high. Use the tailing for making the dam. This is the and that is their cost benefit. This is the international practice. सवाल उठता है कि अगर जादूगढ़ा एक गैर आदिवासी इलाका होता तो क्या यह सब हो पाता? मैसूर से, हैदराबाद से और देश के कई अस्पतालों और प्रयोगशालाओं से क्या रेडियो एक्टिव कचड़े यहाँ फेंके जाते? जो यहाँ रोजाना जो मौत हो रही है, क्या इस पर सरकार सवाल नहीं उठाती? आखिर हमारा गुनाह क्या है? सिर्फ इसलिए कि हम आदिवासी हैं? With 2 tailing dams saturated, UCIL started plans for their 3rd dam. More lands of the people had to be taken over. The tribals of Jharkhand have a history of painful displacement and dispossession. Their symbiotic relationship with their land, the forest, the dwellings of their spirits makes any kind of land alienation life-threatening. टेलिंग पॉन्ड की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इट वॉज द नेशनल इंटरेस्ट, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर जो जिला प्रशासन से मदद बन सका हम लोगों ने उसे किया। ओनली थिंग इज फॉर अस इट इज़ वेरी क्लियर, यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन समवेयर। डू वी रिक्वायर द टेलिंग पॉन्ड? If you require the tailing pond, what are we going to do with it? ये घटना 27 तारीख को है, जो कि
भारतवर्ष में 26 तारीख को हमारा दिवस मनाया जाता है कि हमारा स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जो कि भारत आजाद हुआ कि क्या हुआ। लेकिन हमारा उसी दूसरा दिन ही जबकि झंडा का फूल भी नहीं सूखा था, उसका दूसरा दिन हमको कुचल दिया गया, विदाउट इंफॉर्मेशन का घर को ढा दिया गया। अभी रहा साथ में डीएसपी साला पुलिस ऑफिसर रहा, जैसे कि यहाँ पर महाभारत का युद्ध हो रहा है। हम लोग कौन सा गलती किए थे जो कि हमारा विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट ये करके हमारे को घर को ढहा दिया जा रहा है। जब हमने वहां गए, हम यही माना किए थे भाई कौन सा आप कैसा आप ये कर रहे हैं, पुलिस हमको पकड़ लेता ना तरफ से, चलो जेल ले चलो। हम यही पूछा था कि जेल किस चीज का है, क्या किस कारण से जेल है, क्या हम इसीलिए हम आदिवासी इसीलिए हम लोग को जेल किया जा रहा है। बीरबुरु आंगोर जंगल रे तीना कते चोंग बाबा तेको को मा टंडी लिया, तीना कते चको ओथ हसा लिया, ओरा दुआर दिसम को बनाव लिया। गिदरा को मेना आलो से हम रागा, इनको न तो हम रागे ओडको आलो से हम रागा। इनको तीना कते चोंती यार का, तीना कते चोंती का इनको बस बहेरे उनको तुम पूरा किया। इन खान कोई बस बहेरे आना कोना इतो दो आर ओकारिन चास बस तीन जोमा ओड़ा कोड़ पुटी आले इन बाबा हसा पुचू की दिया को आर कोढ़ा का के जिते को खराबी किया। इन बाबू मान आले कर दे के ना हम जो सलीम जितान रे में जबरदस्ती पुलिस को राणगो के दर को जार कर। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माझी परगना महल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, झारखंड आदिवासी विस्थापित बेरोजगार संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। The UCIL, with the help of the state administration and paramilitary forces, fenced off the area. The Adivasis had only one option. They had to fight for their survival. Such has been their history, such is their present. The people fought to save their land. Women and children slept in front of the bulldozers. The police beat up people with batons. The police arrested them. But the police could not break the morale of the people's struggle. Though powerless in an independent nation, they still possessed the strength of their traditions and culture. The movement did not stay local. It soon spread to other far-flung villages. झारखंड आदिवासी विस्थापित बेरोजगार संघ ने घोषणा किया है, अगर फैसला होगा तो इसी गांव में होगा, इसमें कोई टालेगा नहीं, चाहे जमीन लेने देने का बात होगा और भी गांव वालों के सामने होगा। दमन की बात कहाँ है? दमन की बात सुनिए एक मिनट, आप इतना छोटी बात है जो आपको जरूर समझना चाहिए। अगर दमन की बात रहती, ताकत की बात रहती, ताकत की बात करते, तो फिर आपसे ये पेड़ के नीचे बैठ के बात कर रहे हैं। आखिर आप बाहर के विदेशी तो नहीं है, आप यहाँ के मूल निवासी हैं, आपकी संपत्ति है, आपकी सब कुछ है, और ये कारखाना आपका नहीं है क्या? विदेशी नहीं, कोई सी बात नहीं है। पुलिस हम पर जिस तरह व्यवहार किया है, अगर मैं मर भी जाऊंगा तो वहीं पर मरूंगा, अपना हक से मैं वंचित नहीं हूँगा। और मैं अपने साथियों को भी ये सबक देना चाहूँगा कि ऐसे अपना हक के लिए जो हम लोग भारत के स्वतंत्र नागरिक के रूप में, लेकिन हम लोग ऐसे हक पर अमल करके ही रहेंगे। ये संविधान के तहत जो भी हम लोग का राइट्स है वो हम लोग लेकर के ही रहेंगे। माझी परगना महल
struggle of the people was bringing in results. The first demand of the people was met. The company apologized for desecrating their sacred groves. The land around their sacred groves would not be acquired. Compensation, rehabilitation, and a job per person was promised. जंगल जमीन हमारा है, हमारा है, हमारा है। जंगल जमीन हमारा है, हमारा है, हमारा है। हमारा लड़ाई सिर्फ विस्थापितों को सिर्फ पुनर्वास के लिए लड़ाई नहीं था, कि सिर्फ उसको नौकरी देने का सिर्फ लड़ाई नहीं था। जैसे अभी अगर हम लोग पुनर्वास के लिए मांग करेंगे, या कोई बीमार जो व्यक्ति है, किसी को टीबी है या कैंसर है, उसको इलाज के लिए बेहतर सुविधा के लिए अभी मांग अगर हम करते हैं, उसको दिया जा सकता है। लेकिन फिर अच्छे आदमी जो फिर बीमार हो सकते हैं, ये सिलसिला रहेगा। इसीलिए अच्छा है, हमारा मांग है कि ये यूरेनियम जिस स्थान पर था पृथ्वी के नीचे, जमीन के नीचे, वो उसी जगह पर रहने दिया जाए। और जिस तरह से सांप एक है, जो कि सांप अपना बिल में अगर शांति से रहता है तो वो किसी को खतरा नहीं पहुंचाता है। अगर उसको आप छेड़छाड़ कीजिएगा तो छेड़छाड़ करने वाले और तमाम उससे नज़दीक में रहने वाले को ढंस सकता है, मार देगा। जो गौतम बुद्ध हम लोग का है, जो बोंगा, ये इसी जमीन में पैदा हुआ है। लोग बोल रहे हैं गौतम बुद्ध बहुत खुश है, मुस्कुरा रहा है। ये जो नतीजा है इससे कभी खुश नहीं है। वो यहाँ जब हमारे आदिवासी भाई समाज के अंदर में जब विकलांग लोग पैदा हो रहे हैं, टीबी और कैंसर से लोग मर रहे हैं, तो उसका आत्मा रो रहा है। हमारे पूर्वजों का आत्मा रो रहा है, गौतम बुद्ध का आत्मा रो रहा है। Dimi ebeno me alomo japidi sarasati ne tomo ko ekono baradu setere nandi somo nyutate